Good morning, friends. In the last class, we discussed the complements, especially the subjective complement. And today, we are going to learn the other species of complement, and that is objective complement. Okay? So, we already known about subjective complement, and now we are going to learn objective complement. What is an objective complement? Our topic for today is objective complement. Look at the spelling. There is E after L, not I. So, objective complement. What is an objective complement? When direct object is equal to indirect object, that is said to be an example of objective complement. जब direct object और indirect object एक ही चीज़ होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, firstly we need to understand what is direct object and what is indirect object. जब तक आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. दिस टॉपिक इज़ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक फॉर हायर स्टडीज. एक्चुअली these types of sentences always come in NET examination and in first gate examination and in MA English previous, MA English literature previous in grammar paper. So this species is again very rare species. A few people always know this species objective complement. ज़्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं अथॉरिटीज़ वो जानते हैं इस टॉपिक को. और आज मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के सेंटेंस किस तरह के होते हैं. नाउ लुक एट द स्क्रीन. There are two varieties. Number one, complements are of two types. Subjective complement. What is a subjective complement? We already seen in the last class. When subject is equal to object. When subject is equal to object, when subject is equal to object, it is subjective complement. Okay. Number two, what is objective complement? When one object is equal to the other object, another object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर हो, इक्वल हो. अब वन ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. When direct object is equal to indirect object, this is the specific and precise definition of objective complement. In short, we call subjective complement SC. शॉर्टकट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को SC बोलते हैं हम, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हम OC बोलते हैं. तो कहीं लिखा हुआ आ गया OC का एक सेंटेंस लिखिए.
तो आप किस तरह का सेंटेंस लिखना है मैं भी सिखाने वाला हूँ आपको। एससी का सेंटेंस लिखिए, मैंने बताया आपको, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज़ अ मॉनिटर। ये सब क्या हैं? ये सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is equal to indirect object, that is an example of objective complement. Firstly, we need to know what is a direct object and what is an indirect object. पहले हम ये समझ लें कि direct object क्या है और indirect object कैसे है। सेंटेंस में हमें वो पहचानने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस, नाउ आवर टॉपिक इज, अभी हमें स्मॉल टॉपिक हमने लिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। CBSE 5th or 6th class, I was just once going through a chapter of 5th class student there, in which there was a lesson about identifying direct and or indirect objects. And in fact, there were 3 pages completely, in which it was made understand, it was cleared for the students how to identify direct object and indirect object. The author of that book, the writer of that book, took 3 complete thorough pages to make it clear what is direct object and what is indirect object. Let me clarify this topic only in 3 statements. In 3 sentences, you would be able to know, you would be able to identify what is direct object and what is indirect object. Look here. Let me first give key. This is direct object. How to detect direct object? Key or marker. What is the key? Verb plus what. You have to underline the verb in the given sentence and then put what after it and question with yourself. जो सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं है, निकालना है, उसकी वर्ब तो आप जानते हैं, वर्ब के आगे वॉट लगाएं और क्वेश्चन करें अपने आप से। अगर उसका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वर्ब प्लस वॉट का, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नंबर 2, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Key. What is the marker? What is the key for indirect object? Verb plus whom. In the given sentence, there is a verb. You just take the verb of the given sentence and then put whom. Then question with yourself. Verb whom. Verb what, it is the key for direct object, and verb plus whom, it is the key for indirect object. ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास में, मार्कर हैं, कीज हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। अब ले लें स्क्रीनशॉट, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। यस, he gave me a book. This is a sentence. He gave me a book. Firstly, the first step, we want to know
whether there is a direct object in this sentence or there is an indirect, or both of the objects are present or both of the objects are absent. We want to know this thing. He gave me a book. We know only verb. वर्ब तो हम जानते ही हैं, गेव. तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या दिया है मैंने आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला की मार्कर? वर्ब प्लस व्हाट. इससे क्वेश्चन करेंगे अपने आप से. तो वर्ब की वैल्यू क्या है सेंटेंस में? व्हाट इज द वर्ब? x इज इक्वल टू 5. तो वर्ब इज इक्वल टू गेव. तो गेव जिस फॉर्म में भी वर्ब है वो फॉर्म रख लेंगे आप. गेव, put what? This is the key. This is the question. Now read this sentence. He gave me a book. And the question is, gave what? He gave me a book. Gave what? क्या दिया? The answer is coming or not? He gave me a book. This is the statement in question paper. And now our key is verb plus what? Verb की value क्या है? Gave. The question becomes gave what? Now we just question with ourselves. Gave what? He gave me a book. Gave what? क्या दिया? The answer is a book. So a book is direct object. Yes. Now let us see where there is an indirect object present here in the sentence or not. इस sentence में indirect object भी है या खाली direct object ही है? Sentences may have both of the objects. Sentences may have the absence of both of the objects. Sentences may have only one direct object. Sentences may have only one object that is indirect objects. तो किसी भी सेंटेंस में हो सकता है एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, किसी भी सेंटेंस में खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में खाली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हों. एवरीथिंग इज पॉसिबल. नाउ देखते हैं. लेट अस सी वेदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द की फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? The key is verb plus whom. Then question with yourself. What is the value of verb in this sentence? Gave. The question becomes gave whom. What का मतलब होता है क्या? Whom means किसको? He gave me a book. The question is gave whom. He gave me a book. उसने मुझे एक बुक दी. Gave whom? किसको दी? The answer is me. Therefore, it is indirect object. So we may say that he gave me a book. In this sentence, there is an indirect object and there is another direct object. In this sentence, both of the objects are present. Let us see another example. The soldier saw, past tense, the soldier saw a gun in the battlefield. Now apply both of the keys. Direct object, what is the key? Verb plus what? What is the verb? Saw. So saw what? The soldier saw a gun in the battlefield. Soldier ने battlefield में एक gun देखी. So what? Answer is coming in the form of a gun. The answer is a gun. Therefore, a gun is direct object. Okay. Now let us see. Is there any indirect object? The key of the indirect object is verb plus whom. And what is the
Value of verb in the sentence, the soldier saw. So saw is the verb. Saw whom? किसको देखा? Is there any answer in this sentence? The soldier saw a gun in the battlefield. The soldier saw whom? किसको देखा? Whom always comes for living beings. So there is no answer. अगर यहाँ होता him, her, them, you, me, राहुल, तो ये क्या होता? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते ये. होम किसको देखा? अब इन द बैटल फील्ड किसका आंसर नहीं है? इन द बैटल फील्ड तो वेयर का आंसर है, और वेयर तुम्हारी की में है ही नहीं, तो इन द बैटल फील्ड से कोई मतलब नहीं है. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज भी बोलते हैं इसको, ये फ्रेज कहलाएगी. तो आप कहेंगे आंसर आ रहा है क्या सो होम का? नो आंसर. इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट. तो ही द सोल्जर सो ए गन इन द बैटल फील्ड, इसमें सो वॉट का आंसर तो ए गन आ रहा है, पर सो होम का आंसर इसमें नहीं आ रहा है. तो सो वॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए गन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट हियर. अब आप कहेंगे साहब वो इन द फील्ड भी तो है. अरे भैया इन द फील्ड वेयर का आंसर है. सो वेयर इन द फील्ड, वेयर हमारी की में नहीं है. वर्ब प्लस वॉट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और वर्ब प्लस होम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल जिसमें केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. रतन सो मी, रतन ने मुझे देखा. यस्टरडे लगाना चाहें तो लगा दें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. ये एडवर्ब होती है यस्टरडे. रतन सो मी यस्टरडे, रतन ने कल मुझे देखा. देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या इसमें. व्हाट इज द की फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? वर्ब प्लस वर्ब नहीं बोलो, वर्ब प्लस वॉट. तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल क्वेश्चन? वर्ब की वैल्यू क्या है? सो व्हाट? रतन सो मी, रतन ने मुझे देखा. सो व्हाट, क्या देखा? क्या देखा और किसको देखा में तो फर्क होता है ना. तो क्या देखा का आंसर नहीं है. इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर इज नॉट पॉसिबल हियर. इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट. इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. देखते हैं देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या. व्हाट इज द की फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? वर्ब प्लस होम. ये की लगा के देखें आप, मार्कर. वर्ब प्लस होम, वर्ब प्लस होम, दिस इज द फॉर्मूला for knowing indirect object. What is the value of verb? So. The question becomes so whom, किसको देखा. Now read the sentence. रतन saw me yesterday, रतन ने मुझे कल देखा. So whom, किसको देखा. Answer is coming or not? Yes, answer is coming in the form of me. So whom, किसको देखा. Answer is me. It means me is indirect object. So in this sentence direct object is absent, but in this sentence indirect object is present in the form of me. In the earlier sentence there was present direct object and indirect object was absent there. Now look, and the first sentence, in the first sentence we saw that he gave me a book. Both of the objects were present. He gave me a book. Gave what? A book. That is direct object. Gave whom, किसको दी. Me. That is indirect object. So he gave me a book in this sentence. A book is direct object and me is indirect object. Now let us see. अब ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो. पहले सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, दूसरे वाले में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट एब्सेंट था. इस वाले में रतन सो मी, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ सेंटेंस एग्जाम्पल. In that particular sentence there will be neither direct object nor indirect object. She ran
in the garden. Now, direct object. What is the key? Verb plus what? What is the verb in this sentence? Ran. The question becomes, ran what? She ran in the garden. वो कल गार्डन में दौड़ी थी. यस्टरडे टाइम पीरियड लगा दें, अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. शी रैन इन द गार्डन यस्टरडे, कल वो गार्डन में दौड़ी. रैन वॉट, क्या दौड़ी? देर इज नो आंसर ऑफ दिस इन दिस सेंटेंस. शी रैन इन द गार्डन. रैन वेयर का आंसर तो है, इन द गार्डन, कहाँ दौड़ी? इन द गार्डन. बट देर इज नो आंसर ऑफ रैन वॉट, क्या दौड़ी? क्या दौड़ी का आंसर कैसे पॉसिबल है? सो direct object is absent here. No answer. Now look whether indirect object is here. देखते हैं indirect object इसमें है या नहीं है. तो देखें आप, indirect object की आपकी की है verb plus whom. किसको दौड़ी? Whom means किसको? She ran in the garden yesterday. वो कल गार्डन में दौड़ी. Verb plus whom. Ran whom. This is the possible question. किसको दौड़ी? बहुत अजीब सा बेतुका क्वेश्चन है. तो किसको दौड़ी? It means there is no answer of this question. The answer of this question is never possible. Therefore, indirect object is again absent in this. Ran where का आंसर है in the garden. पर ran where तो हमारा फॉर्मूला है ही नहीं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारा फॉर्मूला verb plus what, और इनडायरेक्ट के लिए है verb plus whom. where तो हमारी की में है ही नहीं. तो ये where है, ran where का आंसर है, तो ran where तो आप कहेंगे in the garden. वो तो फ्रेज है, प्रिपोजिशनल फ्रेज कहते हैं इसको. एडवर्बियल फ्रेज की तरह भी फंक्शन करती है. तो यहां पर जो रेन है इसके बाद में ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ऐसी वर्ब्स जिसके आगे ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. Such verbs that never consist of any of the objects, neither direct object nor indirect object. ऐसी verbs जिनके आगे न तो direct object हो और न indirect object हो. आधी बात तो ये भी, आधी बात और है, ना तो हो direct object और indirect object, और ना ही पॉसिबिलिटीज हो आगे लाइफ में रखने की. फॉर एग्जाम्पल रेन के साथ में ना तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आगे पॉसिबिलिटीज भी नहीं है. कोई सेंटेंस आप बना नहीं सकते इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के, नहीं लगा के. एक और सेंटेंस में बोलता हूँ, आई ईट फुल स्टॉप. अब इसमें भी आई ईट इस सेंटेंस में आगे ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर पॉसिबिलिटी तो है ना. आई ईट के आगे समोसा लग सकता है. आई ईट समोसा, ईट वोट समोसा. तो फिर ईट जो है इसके आगे अभी सेंटेंस में नहीं है, पर लगने की पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. डिक्शनरी में स्टेटस क्लियर होता है, किसी भी वर्ब के आगे लिखा रहता है वीटी वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब इंट्रांजिटिव लिखा रहता है. ऐसा नहीं होता है कि सेंटेंस में तो ये ट्रांजिटिव इसमें इंट्रांजिटिव, वो फिक्स्ड है उसका स्टेटस. तो व आई एट समोसा ट्रांजिटिव. अब आई एट फुल स्टॉप, ये इंट्रांजिटिव थोड़ी होगा. एट तो ट्रांजिटिव है, तो हर सेंटेंस के अंदर वो ट्रांजिटिव रहेगी. बाकी रैन देखो आप, ही रैन, रैन वॉट, क्या दौड़ा, ना तो है ना लग सकता है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है. रैन होम, किसको दौड़ा, ना तो है सेंटेंस में ना कोई लगा सकता है इसके आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरिंग ईदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज nil in the case of the verb ran. Therefore ran is said to be an example of intransitive verb. जो वर्ब जिनके आगे ना तो डायरेक्ट हो ना इनडायरेक्ट, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और ना ही लगने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो,
उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिनके आगे एक भी आ गया, आई गेव ए बुक आ गया, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया जब भी, आई ही सॉ मी इनडायरेक्ट आ गया तो सा ट्रांजिटिव वर्ब है। एक भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो भी अच्छी बात है, ट्रांजिटिव कहलाएगी। दोनों ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं तो वो इंट्रांजिटिव हो सकती है, लेकिन अभी देखो उसमें लगाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सेंटेंस में उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, पर उसमें पॉसिबिलिटी बन रही हो इन फ्यूचर लगाने की। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शी स्पॉक टू मच। टू मच तो एक अलग हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है मच, पॉजिटिव डिग्री में। टू आपकी एडवर्ब होगी, TOO। अब यहाँ पे शी स्पॉक, स्पॉक वॉट, इसमें आ ही नहीं रहा है आंसर। स्पॉक हुम आ ही नहीं रहा है, पर पॉसिबिलिटी है कि स्पॉक किसी ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। शी स्पॉक इंग्लिश, शी स्पॉक उर्दू, शी स्पॉक संस्कृत। तो स्पॉक को स्पॉक में इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, पर पॉसिबिलिटी को कैरी कर रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी के बेस पे ये ट्रांजिटिव में जाएगा। तो स्पॉक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट इज नॉट एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं एक और सेंटेंस लेता हूं। आप कहेंगे, मान लीजिए ही स्लीप्स इन द डे लाइट, वो दिन की रोशनी में सोता है। स्लीप नींद आना, स्लीप्स व्हाट क्या सोता है, नो आंसर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। स्लीप्स होम किसको सोता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अगेन एब्सेंट। अच्छा, दोनों एब्सेंट है, पर पॉसिबिलिटी क्या, ये भी देख लेते हैं अपन। तो पॉसिबिलिटी है स्लीप व्हाट क्या सोता है, आंसर नहीं बन सकता कभी, पॉसिबिलिटी भी नहीं है इसकी। तो स्लीप होम किसको सोता है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। इट मीन्स स्लीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ना ही ये कैरी कर सकता है कभी किसी सेंटेंस में, इसलिए स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दोज वर्ब्स विच मे हैव ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ईदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और indirect object or both of the objects, those verbs are said to be the examples of transitive verb. And those verbs that never do have any of the objects are said to be examples of intransitive verb. It means transitive verbs do have at least one object or two objects, and intransitive verbs never does have any of the objects. Intransitive verbs are free of objects, and transitive verbs are having one or two objects. This is the difference between transitive verb and intransitive verb. Transitive verb में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होगा, या तो डायरेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर दोनों ही होंगे, या फिर दोनों ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी होगी उसको कैरी करने की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ना ही इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने की उस वर्ब में कोई रिटेंशन पावर होगी, ओके, यानी कि वो कैरी भी नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी वर्ब्स जैसे आपने कहा रन, जैसे आपने कहा ये कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, स्लीप वाला, ये सब क्या है, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो आज का टॉपिक मैंने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए शुरू किया। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अदर ऑब्जेक्ट। तो फिर ये जानना ज़रूरी है भाई साहब, दो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके, OC। कल मैंने पढ़ाया था आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना ज़रूरी है आपको, वरना आप मेरी बात समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कीज़ दी, फॉर्मूला दिया, आपको समझाया। अब आप समझ गए हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक भी अपना पूरा हो गया। तो इस लेक्चर में आप
आपको मैंने पढ़ा दिया है व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑब्जेक्ट रखती हैं वो वर्ब क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने सीख लिए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत रेयर पीपल जानते हैं इसको। देखें आप, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होगा ये, और ग्रामर में भी, और कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। और एमए प्रीवियस में भी आते हैं ये सेंटेंस पैटर्न में, अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is equal to indirect object, that is called OC, objective complement. These types of sentences, I mean the sentences of objective complements are made only with certain verbs. हर किसी वर्ब से ये नहीं बनेंगे, हर किसी वर्ब से तो आपका अलग पैटर्न बनेगा सेंटेंस का, वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। ओसी का नहीं बनेगा, ओसी के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ब्स हैं उसी से बनेगा। आप देखें, मैं दो सेंटेंसेस आपको देता हूँ, एक ओसी का होगा और एक नहीं होगा। सोनिया गांधी gave Manmohan Singh a dictionary। देखें, what is the meaning of this sentence? सोनिया गांधी gave मनमोहन सिंह, gave whom? मनमोहन सिंह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप सीख लिया आपने ये। gave what? क्या दी उसने? सोनिया गांधी जी ने क्या दिया मनमोहन सिंह जी को? एक डिक्शनरी दी। what का आंसर आ रहा है, तो डिक्शनरी क्या हो गया आपका? ए डिक्शनरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? ए डिक्शनरी, और इनडायरेक्ट की क्या है? मनमोहन सिंह, SINGH। Is their direct object equal to indirect object in this sentence? सोनिया गांधी gave मनमोहन सिंह ए डिक्शनरी। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को एक डिक्शनरी दी। यहां पे क्या है? gave what? क्या दी? ए डिक्शनरी। ए डिक्शनरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। gave whom? किसको दी? मिस्टर मनमोहन सिंह को दी। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए डिक्शनरी, ये लिखा हमने, और इनडायरेक्ट क्या है? मनमोहन। तो मनमोहन सिंह क्या एक डिक्शनरी है क्या? मनमोहन सिंह एक डिक्शनरी है क्या? नहीं है। ये जब की बात बता रहा हूं मैं, जब वो PM थे। ओके, तो ये सेंटेंस ओसी का हुआ क्या? नो। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस और बनाता हूं। सोनिया गांधी नॉमिनेटेड मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह द PM ऑफ इंडिया। कांग्रेस से नॉमिनेटेड PM थे। सोनिया गांधी नॉमिनेट किया सोनिया गांधी जी ने किसको? इनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
तो देखें इसमें निकाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉमिनेटेड व्हाट, क्या नॉमिनेट किया, द आंसर इज द पीएम ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड होम, किसको किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो द पीएम ऑफ इंडिया थे कि नहीं थे, थे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल है कि नहीं है। तो ये बाद वाला सेंटेंस जो है, सोनिया गांधी नॉमिनेटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह द पीएम ऑफ इंडिया। हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वाज व्हाट, द पीएम ऑफ इंडिया। तो आप यहां कहेंगे मनमोहन सिंह इज इक्वल टू द पीएम ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये मनमोहन सिंह जी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आपका द पीएम ऑफ इंडिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसमें। मनमोहन सिंह जी पीएम थे कि नहीं थे, पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि ओसी का रहेगा। जबकि ये वाला सेंटेंस पैटर्न आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यह पैटर्न क्या है आपका, यह पैटर्न आपका क्या रहेगा, ओसी। ओसी कैसे होगा आपका, इसमें क्या है, सोनिया गांधी जी सब्जेक्ट प्लस नॉमिनेटेड वर्ब प्लस डॉक्टर मनमोहन सिंह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस द पीएम ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और या प्लस की जगह आप इज इक्वल टू कर लो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब किसी भी टाइप टेंस में आ जाएगी, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, होपफुली यू गॉट द पॉइंट। मैं एक और, चूँकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा शायद ये, तो थोड़ा मैं एक दो और आपको ड्रिल करा दूं, एक दो प्रैक्टिस और करा देता हूं मैं आपको। देखें आप, he called me a taxi. This is a sentence. Now let us see whether this sentence is an example of OC, objective complement, or it is not an example of OC. Let us see. सबसे पहले देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालें। वर्ब इज कॉल्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड व्हाट का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही कॉल्ड मी ए टैक्सी, कॉल्ड व्हाट, क्या कह के पुकारा उसने मुझे, ए टैक्सी। ए टैक्सी इज द आंसर हियर, इट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2, फर्स्ट लेट अस सी वेदर देयर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट। तो ओसी में दोनों ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे इनडायरेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर वो ओसी का एग्जाम्पल कभी नहीं हो पाएगा। दो ऑब्जेक्ट्स मैंडेटरी है ओसी के लिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए। नाउ लुक, verb plus whom, it means called whom. This will be the possible question of indirect object. Called, he called me a taxi, called whom, किसको कह के, किसको कहा, किसको पुकारा उसने, me, मुझे।
द आंसर इज मी. मी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमने देख लिया यहाँ पर पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या कि ही कॉल्ड मी ए टैक्सी एक सेंटेंस है, इसमें मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए टैक्सी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये एक्सरसाइज रफ वर्क किया है हमने. वी हैव डन दिस रफ वर्क ओनली टू नो what word is an example of indirect object and what word is direct object. जब हमने जान लिया कि मी indirect object है और direct object क्या है, a taxi, तो अब इसको हम वाइप आउट कर दें. ये प्रैक्टिस मैं पहले करा चुका हूं अभी आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. अब ये आपके पास आ गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन दोनों को इक्वल कर लें. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Me. Indirect is me. What is the value of direct object? A taxi. मैं एक टैक्सी हूं क्या? नहीं हूं. अगर मैं एक टैक्सी नहीं लिटरल मीनिंग में लेंगे तो ये जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का क्या है, एग्जाम्पल नहीं है. लेकिन ये सेंटेंस मैंने लिखा है मेटाफोरिकली, यानी कि उसने मुझे टैक्सी, दुनिया भर की हम्बाली करता रहता हूँ मोहल्ले में, इसके सामान उठा रहा हूँ, उसके सामान उठा रहा हूँ, उसको वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, उसको होते ना बहुत से लोग बेचारे इतने सोशल वर्क, तो उसको सटायर में, ह्यूमर में, मेटाफोरिकली बोल देते हैं अरे यार टैक्सी है वो. तो ऐसे अगर कोई बोल रहा है तो फिर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. ही कॉल्ड मी ए टैक्सी. इसके दो मीनिंग हैं. एक तो उसने मेरे लिए टैक्सी बुलाई, और एक ये कि मुझे टैक्सी के पुकारता है कि दुनिया भर की हम्बाली ये करता है भैया, इतना बड़ा सोशल वर्कर है ये. तो ही कॉल्ड मी ए टैक्सी. यहाँ पे मी बराबर क्या है, टैक्सी. तो ये ओसी का एग्जाम्पल हो सकता है. कैसे, मेटाफोरिकली स्पीकिंग. एंड लिटरली, लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका, मी कोई टैक्सी थोड़ी हूँ, मैं कोई टैक्सी हूँ क्या, बलिनो, इनोवा ये टैक्सी होती है, ये हूँ क्या मैं इनोवा, नहीं हूँ. तो फिर लिटरल मीनिंग में ये ओसी का एग्जाम्पल नहीं है. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको जिसमें प्योर ओसी नज़र आएगा आपको. ही कॉल्ड मी, इसी को यूज़ करते हैं अपन. या दूसरा लिखते हैं, चलो. Raman's wife called her husband a fool. Raman's wife called her husband a fool. रमन की वाइफ ने उसके पति को फूल, बेवकूफ कहा. देखते हैं अपन व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब इज कॉल्ड. कॉल्ड व्हाट, क्या कहा, कॉल्ड व्हाट. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए फूल. आंसर आ गया अपना. तो ए फूल क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यस, देखते हैं देखा इनडायरेक्ट है कि नहीं इसमें. कॉल्ड होम, किसको कहा, हर हस्बैंड को कहा. तो कॉल्ड होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है. दोनों ऑब्जेक्ट हो गए. पहली कंडीशन तो क्रॉस कर गया है, यानी कि ओसी होने की पॉसिबिलिटी तो है. अब देखते हैं आगे. कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड होम, सॉरी, कॉल्ड होम किसको कहा, हर हस्बैंड. रमन्स की वाइफ ने अपने हस्बैंड को ही कहा, जैसा कि सभी वाइफ्स कहती होंगी शायद, हर हस्बैंड. ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. रमन्स वाइफ कॉल्ड हर हस्बैंड ए फूल. कॉल्ड होम किसको कहा, बेवकूफ, हर हस्बैंड को कहा उसने. कॉल्ड व्हाट, क्या कह के पुकारा, ए फूल, बेवकूफ कहा एक. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका ए फूल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका हर हस्बैंड. अब देखें आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर हस्बैंड क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर हस्बैंड इज इक्वल टू ए फूल। कंडीशन पूरी हो रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल है कि नहीं है? है। हर हस्बैंड ही तो फूल है इसमें सेंटेंस में। बेवकूफ़ कौन है? शी है। मतलब रमन्स वाइफ बेवकूफ़ है या हर हस्बैंड है? बेवकूफ़ रमन्स वाइफ नहीं है, बेवकूफ़ तो इस सेंटेंस में हर हस्बैंड है। तो हर हस्बैंड इज इक्वल टू ए फूल। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और OC। नाउ लेट अस सी अनदर सिंपल एग्जांपल। मोहित मेड सुनील ए फूल। मोहित ने सुनील को बेवकूफ बनाया। वर्ब मेड होम, किसको बेवकूफ बनाया? सुनील। तो सुनील इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेड व्हाट, मोहित ने क्या बनाया? तो आप कहेंगे ए फूल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहित मेड सुनील ए फूल। मेड हुम, किसको बनाया? एक बेवकूफ, सुनील को। तो सुनील इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेड वॉट, ये कीज मैंने बताई है, अभी आपको रिवाइज कर लेना, आप रिकैप कर लेना। मेड वॉट, सुनील को क्या बनाया उसने? ए फूल। ए फूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं, देखा इस सेंटेंस में दोनों एक ही हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट क्या है इसके अंदर? ए फूल। या इसको उल्टा कर देते हैं अपन, IO और DO, समझने के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी लिखेंगे जब। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सुनील। सुनील इज इक्वल टू ए फूल। अब इस सेंटेंस को पढ़ो आप। मोहित मेड सुनील ए फूल। मोहित ने सुनील को एक बेवकूफ बनाया। इसमें मोहित है एक फूल या सुनील है एक फूल? अब इसको भूल जाइए आप। नाउ कॉन्सेंट्रेट एट दिस सेंटेंस ओनली। इन दिस सेंटेंस मोहित मेड सुनील ए फूल, क्या सेंस निकल के आ रहा है? मोहित इसमें फूल है या सुनील इसमें फूल है? मोहित ने तो बनाया है, फूल तो सुनील है। ठीक है, तो अब आप देखें, अपन ने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाला है, इसमें सुनील इज इक्वल टू ए फूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यहाँ पे भी सुनील इज इक्वल टू ए फूल है कि नहीं है? है। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर मोहित इज इक्वल टू फूल होता तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है? मोहित ने तो बनाया है, फूल तो सुनील है। तो ये सुनील इज इक्वल टू ए फूल, ये है कि नहीं दोनों एक चीज़? सुनील ही तो ए फूल है। सुनील इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये IO, ये DO, और दोनों क्या हैं? इज इक्वल टू। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोथ आर सेम। तो सुनील एक फूल है, इसमें मोहित फूल नहीं है, मोहित तो बनाने वाला है। सो यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मोहित मेड सुनील ए फूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ऐसे टॉपिक हैं भैया, बहुत सारे हैं ऐसे टॉपिक्स, तो अगर अपन पढ़ाने पाएंगे तो ओके, न जाने कितने तरह के हैं। तो देखें आप, अब 2 तरह के मैंने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ाए आपको, बहुत कम जगह आपने देखे होंगे ये टॉपिक्स। मुझे नहीं लगता कोई कहीं क्लासेस में ड्रिल हो रहे हैं ये। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का तो हाल ये है, मैंने पढ़ाया आपको, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एंड व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई इज इक्वल टू टीचर। टीचर कौन है? मैं क्या हूँ? टीचर। ये सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और बीच में होती है कॉपुला लिंकिंग वर्ब, वर्ब लिंकेज, ओके, ये बी टाइप वर्ब, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको तो लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। SC और OC के नाम से जानते हैं इनको।
तो आई एम ए टीचर ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गो, ड्रिंक, ईट, स्लीप, टॉक, वॉक, वो इसमें है ही नहीं, तो ये प्रेजेंट सिंपल नहीं कह सकते आई एम ए टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अभी जो मैंने पढ़ा है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये हायर कॉम्पिटिशन्स जितने भी होते हैं, हायर स्टडीज़, सबसे बड़ी क्लास होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपकी केमिस्ट्री है तो एमएससी से बड़ी पढ़ाई कहीं नहीं होगी, आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो एमए इंग्लिश से बड़ी क्लास कहीं नहीं होगी। हाँ, एम फिल में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, फिर एम फिल में आप इतना नहीं सीखते हैं। एम फिल में तो नॉवेल होते हैं, पोएम होते हैं, ड्रामाज होते हैं, लिटरेचर ही लिटरेचर होता है। ग्रामर तो आपके एमए पे जाके फुल स्टॉप हो जाती है, वो भी प्रीवियस में है ग्रामर, फाइनल में तो ग्रामर है भी नहीं, एमए फाइनल में। तो प्रीवियस में आप ढंग से पढ़ लेंगे तो वहाँ पे भी ये पैटर्न आएंगे एससी ओसी के, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा भी पीआरजी प्रीपोजिशनल ग्रुप के हैं, एडजेंट के हैं, कंजंट के हैं, डिसजंट के हैं, प्योर एडजेक्टिव के हैं, ईएन एडजेक्टिव के हैं, ईडी एडजेक्टिव के हैं, फ्रेजेस के हैं, एडवर्बल फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, सब्जेक्ट फ्रेज, ऑब्जेक्ट फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब जेरेंडल के हैं, बेयर इन्फिनेटिव के पैटर्न हैं, टू इन्फिनेटिव से फुल इन्फिनेटिव कहते हैं उसके पैटर्न हैं, आपके रेस्टोरेटिव इन्फिनेटिव के पैटर्न हैं, पैसिवाइजेशन के पैटर्न हैं। तो पैटर्न्स बहुत सारे हैं, और सब पैटर्न्स एक्चुअली हु इज़ द फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश टीचर? द फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश टीचर in the world of English is Hornby. Hornby actually he just designed 99 structures. स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं सेटल्ड आइडिया। आप ऐसे के ऐसे सिखा दो, ऐसे कैसे इसका अर्थ निकलेगा, ऐसे कैसे ही आपको इस सिचुएशन में बोलना है। तो 99 स्ट्रक्चर्स बनाए उन्होंने उन लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए जो कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी। इसलिए मेरी ओपिनियन में फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर कौन है? ए.एस. हॉर्नबी। ओके, वहीं पे ये पैटर्न्स आपको सारे मिलेंगे देखने को। ओके, सो आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से आपने पहली बार पढ़ा होगा, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी उसको आप प्रेजेंट सिंपल मानते थे, वो भी शायद पहली बार पढ़ा होगा। ये कॉम्प्लीमेंट पिछला लेक्चर और ये लेक्चर, ये दोनों एपिसोड्स जो हैं इनके आप नोट मेकिंग कर लीजिए रजिस्टर में, इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो आप। ओके, होपफुली यू एन्जॉयड दिस लेक्चर, और कमेंट आप कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं। आई वुड लाइक टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ यू पीपल देयर, सारे सोल्यूशन हम आपको वहाँ पर देंगे। और प्लीज़ अब एक काम ये भी मेरी बात मान लीजिए आप, जब आपको इतना नॉलेज वगैरह हम दे रहे हैं फ्रीली, ऑल फ्रीली, सारा सिलेबस मैं फ्रीली बनाने वाला हूँ। मेरी अर्निंग के लिए मेरी ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी हैं, आपको ऑनलाइन सब फ्री देने वाला हूँ मैं। आईएएस का पूरा कोर्स, आरपीएससी फर्स्ट गेट की सारी पॉम्स, सेकंड गेट की पूरी ग्रामर, रेट की पूरी ग्रामर, एमए प्रीवियस की टेक्स्ट पूरा, एसेस, पोएट्री, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और सबसे पहले मैं बनाऊँगा सीबीएसई के इलेक्टिव इंग्लिश को बोलते हैं लिटरेचर स्कूल में, सीबीएसई में, और कोर इंग्लिश को बोलते हैं कंपलसरी। सीबीएसई कोर और इलेक्टिव ये मेरी प्रायोरिटीज़ में है, ताकि बच्चे सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म करें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी पूरे इंडिया में इनकी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं जितनी भी पोएम्स हैं आपके फ्लेमिंगो की और ये सब जो है ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, एंड जेनिफर्स टाइगर। एंड जेनिफर्स टाइगर का तो नेट में क्वेश्चन भी था, उसमें सिंपल क्वेश्चन था, आंट जेनिफर्स टाइगर जो है इसकी पोएट कौन है? ये नेट क्वेश्चन था दिसंबर जो है 2022 के अंदर। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रन ऑन एंजॉयमेंट पे क्वेश्चन था, व्हाट इज़ रन ऑन एंजॉयमेंट। उसके अलावा जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पे पहले डिक्शनरी कौन से ईयर में बनाई, ये भी क्वेश्चन। तो आप कंसेप्टिव अगर पढ़ेंगे शुरू से ही तो आपके नेट वेट कोई इशू नहीं होता एक्चुअली। ओके, नेट इज़ नेवर इशू इफ़ यू स्टडी स्टेप टू स्टेप कंसेप्चुअली। आप कंसेप्चुअली अगर पढ़ रहे हैं तो इट मेक्स एवरीथिंग ईजी देयर, नथिंग इज़ वेरी हरक्यूलियन, कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। नथिंग बिकम्स जॉर्जियन नॉट एंड सिसिफियन नॉट। सिसिफियन नॉट और जॉर्जियन नॉट को बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसका सलूशन नहीं हो। तो आई थिंक सब चीज़ों के सलूशन है,
और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उनका. यू कैन आस्क एज मैनी क्वेश्चंस in comment section as you wish, and please now subscribe my channel and like it and share it और बेल भी बजा दें आप. That's enough for today. Hopefully you enjoyed this. We can meet tomorrow in the next lecture. Till then, thanks. Have a nice night.